My name is Munish. Topic of discussion is understanding the memory and its utilization. So we will understand what is memory. Memory is our mental. मतलब हमारी याददाश्त. Yadasht. Very good. Any other idea? Anybody else want to add? What is memory? Memory is a thing which we remember in our brain, like early humans and more things. Memory is the capacity to remember something. Very good. Okay. Anybody else? Okay. So as you all have mentioned, memory is yadasht. Memory is ability to remember. So it is our mental ability to store and recall. We store and recall. So both these functions are part of memory. So we have basically three types of memory. One is sensory memory, short-term memory, and long-term memory. When we say sensory memory and short-term memory, it is something which is very short, up to 25 seconds, which is remembered till 25 seconds. And so for a short time. And then we have long-term memory, which is stored for decades, we can say many years, long-term memory. Then as you all are aware, with the computer, we will compare our memory with the computer. Okay, so what are the different types of memories we find in computer? Any idea? Long-term memory. Long-term memory is hard disk. Okay. Then we have RAM also in the computer, random access memory, which is not permanent, which is only working memory. When we are working on the computer, the memory being used is RAM. And if we want to store something for permanently, then we press the shift button or Control S. That information is stored permanent in the hard disk. Okay. So if we want to understand our memory, we also have short-term memory, that is we can compare with RAM of the computer, and then we have long-term memory, which we can compare with the hard disk. ROM, we can say hard disk. ROM CD drive, which was actually read-only memory. Okay, so is it not so easy in computer to save the information from short-term RAM to hard disk? So कितना अच्छा होता अगर हमारी मेमोरी में भी हम कोई बटन क्लिक करते और हम उसको परमानेंट मेमोरी में सेव कर देते. Yes. Is that not interesting? Yes. Okay, so we'll see some tricks today, how we can use that, how we can do that to save the memory in the long-term memory, to save the information in the long-term memory. So it will be very useful in different areas of life. For example, in exams, while studying, while going to market, we have many lists with us to remember, right? So all that will help us if we can save the information in our permanent memory. Okay. So like we have RAM and hard disk, we will also understand structure of human memory. We have billions of neurons in our mind, billions of neurons, and each of these neurons are connected to each other, and that is known as a connection. It is the connection where information is stored. Now, computer has a limited memory. For example, we can say hard disk is having 100 GB, 200 GB, 300 GB. What about amount of long-term memory which human mind has or human has? That depends upon the number of connections, and those number of connections are
trillions, in trillions. Why? Because each neuron is connected to every other neuron, and the information stored at any one connection is useful in many other things. For example, if I say the word freedom, this freedom word, when we say word freedom, you so many things come to your mind. It can be related to our freedom fight. It will be related to freedom fighters. Some people can recall their own freedom, personal freedom. So different people have. Like the people who freed us from the freedom too, sir. Yeah, Naya. And the people who fight for the freedom and freed us. Yes. So different people have different associations with the word freedom. So many things come to our mind when we say some word. It is not the one word does not give us only one. We don't recall one thing when we say one word. There are so many things which are recalled, which come to our mind at the front of our mind when we say something. So one connection can be useful in many different memories. So we have trillions of connections. So in simple language, I will tell you one interesting thing. Human brain, human memory is, if we see 300 years, if we see the television programs for 300 years, we can store all the programs in our memory. That is the capacity of human memory. 300 plus years of memory, TV programs can be stored in our long-term memory. So with this fact, you can believe your memory. Always you can believe your memory. You have abundance of memory, be remembered, and things can be remembered. This belief system increases the probability of retaining the things. So we should be free from this fear that there is a limitation of memory in our mind. We have abundance of memory. Okay. So can you tell me some examples in our daily life which are stored in our long-term memory, one by one? So it will be more clear to us what is the difference between short-term memory and long-term memory. Because I have told you, let me repeat, short-term memory is something which is stored for 25 seconds, up to 25 seconds. And long-term memory is for decades. It may be up to decades. It depends upon how many times we visit that information again and again. I will explain that in second topic of recalling the information. As of now, tell me some example which is stored in your permanent memory. Hargun, Karman, Kavya. Can you repeat your question? Question is कि कोई ऐसी एग्जांपल्स बताओ मुझे जो हमारी परमानेंट मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है. आपके हिसाब से बता दो. Family members. Name of family members. Is it? You want to say name of family members? Some friends' name. Your name. Okay, good example. Any other? Surname. Okay. The tables that we learn in maths. Very good example. Very good example. Do we ever forget? Our society's name. The Thank table? you. Okay. Name. Our habits. Or What about our parents? Bad or Our good? birthdays. Bachche, our birthdays. Birthday. Yeah, our Name own of ones. birthdays, okay? Yes, Counting. birthdays. Of our dear ones. Past times can be there. Our daily routines, like our going to our office place or school place, those all directions are saved in our permanent memory. अगर आपको कोई बोल दे आज आपको सुबह ऑफिस नहीं जाना, दूसरी जगह पे जाना है, कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि जब ऑफिस पहुंचे तो पता चलता है आज तो मुझे यहाँ आना ही नहीं था, मैं तो दूसरी जगह जाना था. Why it happens? Because that is stored permanently in our mind. वो रूटीन बना हुआ है, वहां ऐसे जाना है.
some bad, some all the habits, जैसे हमने ब्रश करना है रोज, दैट इज अवर परमानेंट मेमोरी, उठ के हमें ये करना ही है. हम क्यों बोलते हैं कि एक चीज को बार बार करो? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. व्हाई इट इज सो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट? बिकॉज देन दैट प्रैक्टिस मूव्स द थिंग्स, दोज steps or process into our permanent memory, long term memory. Okay, so these were the nice examples. Then we will move to our second. In the first part we have discussed about what understanding our memory. So in the understanding of memory, Your voice is cracking. my voice is cracking. Yes, sir. Aman, can you confirm me? Aman, are you there? Yes, So your voice is cracking. actually it's an internet problem. Okay, I have FusionNet connection, it should work properly. I Yes, think one good thing would be that we switch off the, we mute our audios, so that will. Oh, it's now with Chandigarh. Weather is good now, or what? okay, is it okay now? Is it better? Yes, sir. Kavya, beta, can you confirm me? Is it better now? Yes, your voice is better. Yes. Okay. Yes, sir. Okay. So, Swadha is not facing any problem. Swadha is not facing any problem. okay, thank you. So, we have gone through first part of our discussion, that is understanding our memory. I will summarize the first part. First part was what is memory. Memory is our ability to store and recall the information. Then we have discussed different types of memory: short-term memory and permanent memory or long-term memory. Long-term memory, our capacity of a human being, long-term memory is in abundance. 300 plus years of TV programs can be stored, so no worries. Then we have discussed how we different examples of long-term memory, and then we will now move to our next topic of storage of memory. How we store, how we can click the save button to move the information from short-term to, like computer moves from RAM to hard disk. So along with concentration, so what is that thing which moves the information to our long-term memory? Is attention, focus, concentration, interest. So if you are listening to me or some any topic with interest, with focus, with concentration, with one thing at a time, if you are only listening to me only, not doing anything else, उससे क्या होगा? वो इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड वे में आपके माइंड में एंटर करेगी और वो आपके परमानेंट मेमोरी में जा सकती है. और अगर आप उस इंफॉर्मेशन को रिविजिट करेंगे, हम उसका थर्ड टॉपिक में डिस्कशन करेंगे, रिविजिट, राइट, विजिट ऑफ द रिविजिट ऑफ द इंफॉर्मेशन. सो concentration, focus is one thing. Along with that, because that is not in our mind, that is not in our hand always, because we are not clear, it cannot be measured. Attention, focus and concentration कि कितनी चाहिए, हम उसको नाप नहीं सकते. तो इसके लिए हम कोई साइंटिफिकली क्या कर सकते हैं, क्या टिप्स हम अभी सीखेंगे कि जिसको हम साइंटिफिकली यूज कर सकते हैं. उसमें पहला है, लाइक बाबा मैडम ने हमें बताया टेबल्स का, रेपिटेशन, क्रैमिंग, जो हम रिपीट करके एक चीज को बार बार करके हम कोई चीज को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, आई विल यूज अ लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट इंटरचेंजेबली, ये दोनों एक ही चीज है. ओके बच्चों. सो अगर हम एक चीज को बार बार करेंगे, रिपीटेडली करेंगे, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएगी. इसकी एक एग्जांपल हमने देखी टेबल्स, और कोई एग्जांपल इसकी, जैसे हम कोई चीज को बोलते हैं 5 बार रिवाइज कर लो इसको एग्जाम के टाइम पे, तो वो चीज हमारी रिपीट करने से इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाती है. सो सेकंड, दैट इज समथिंग वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ टेबल्स. देन second thing is linking method. Please understand it very carefully, it will be very useful for you. Linking method. What is linking method? Linking method is एक चीज When you link one thing to जो हमें ऑलरेडी another पता so है, that जो it हमारी makes परमानेंट sense. मेमोरी,
Sorry beta. Can you link one thing to another or an idea to another so that it makes sense? Yes, so you link something which is already in your permanent memory, in your connection. I explained you neurons, वो न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कनेक्शन बनता है, वहां पे एक इंफॉर्मेशन आपके स्टोर्ड पड़ी है लॉन्ग टर्म मेमोरी में. आपको कोई नई चीज आपके सामने आई, आपने उसको उससे लिंक कर देना है. उसको लिंक करके इट विल बी वेरी इजीली, इट विल मूव फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू परमानेंट मेमोरी. इसकी कोई एग्जांपल, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, इससे आप और एग्जांपल को ट्रिगर कर सकते हैं हम डिस्कशन को. फॉर एग्जांपल, हम कहीं पे खड़े हैं, हमसे कोई रास्ता पूछता है कि मुझे सोहाना हॉस्पिटल जाना है, कैसे जाऊं मैं. फिर हम उससे पूछते हैं कि तुम्हें वो पता है, वो वाला चौराहा, या तुम्हें लिबर्टी हॉस्पिटल, या तुम्हें कटानी. हम कोई ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उस आदमी के परमानेंट मेमोरी में है, जो उसको ऑलरेडी पता है. फिर हम उसको वहां से बताना शुरू करते हैं कि वहां से लेफ्ट ले लेना, वहां से राइट ले लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना. बट फर्स्ट थिंग इज वी बोथ अग्री टू ए पॉइंट जो उसकी मेमोरी में ऑलरेडी है. तो दिस इज समथिंग नोन टू अननोन. टीचर भी जब जैसे कोई पढ़ाते हैं कोई चीज हमें, तो उसमें भी यही होता है कि वो पहले आपका लेवल देखते हैं कि आपको कहां तक पता है, फिर उसके आगे बताना. अगर हम सीधा इसका उल्टा देखें कि हम अननोन टू अननोन बताना शुरू करें कि आप उधर से उधर चले जाना, उधर से उधर चले जाना, उसके दिमाग में कुछ जाएगा उसके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कहां से शुरू किया है आपने. सो लिंकिंग मेथड इज इंपॉर्टेंट. यू आर यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी देयर इन योर परमानेंट मेमोरी. उसको यूज करके आप अननोन चीज को भी उसके साथ अटैच कर रहे हो. तो ये है लिंकिंग मेथड. इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा लिंकिंग मेथड की. फॉर एग्जांपल, आप जब किसी चीज का नाम सुनते हो पहली बार, और वो चीज आपको पहली बार सुनी है आपने, लेकिन आपके दिमाग में उसको सोच के क्या याद आ रहा है, क्योंकि आपकी मेमोरी एकदम से आपके सामने बहुत सारी चीजें रख देगी जो उससे लिंक्ड होती हैं. तो आप जो अननोन चीज आपने अभी सुनी है, जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं उससे लिंक्ड, यू कैन मेक ए कनेक्शन बिटवीन देम, बिकॉज इट विल बी वेरी easily you can move the information to your permanent memory. Don't bother about whether that thing which is coming to your mind is linked to this or not. They may be these two things may be entirely from different fields, but you are working on science of your memory. आप अपनी मेमोरी के ऊपर काम कर रहे हो कि आपने उसको कैसे लिंक करना है नई इंफॉर्मेशन को पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ में. ओके, इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? अगर इसके अंदर कोई आपको डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मुनीश जी, आपने इम्पोर्टेंट कहा, इससे मेरे को एक बात याद आई है. या प्लीज शेयर. Firstly, what happens with, and this happens with everyone, anything that you are convinced is important, you will not forget. Firstly, जब कोई चीज लगती है, अब मेरे को लगता है कि मेरे लिए this is important, मैं नहीं जिसको मैं कैजुअल करूंगी उसको मैं अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल के तो डिलीट भी कर दूंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है तो वो मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल also a way of remembering. जैसे suppose I have lent somebody some money, because money is important for me. Do you think I'll forget it? I have lent some money. Very less chances. Or somebody has done me a favor, and I think that yes, he has done something, and I have been benefited, and that is important. So I will not forget that incident, and I will always link that person, because I thought it was important that he's done for me. So I will keep him in the list of important people. So that is our brain is very intelligent. It will do it. So thank you very much for explaining this. So this is what we discussed in our first part, as you rightly said. This is my explanation of how we store memory, of incidents, of people, of events. This is all. What we consider important, we store in our memory for long term. What we consider it's not very important, we just forget about it. Yes. So like in first, like you said,
in first part we understood something which is where we put our more attention, something of interest, where we focus, where we concentrate. That is decided by our internal system, because that important, what are the things important for us, that is also decided by our long term memory, because वो प्रोग्राम हुआ है हमारे अंदर कि कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं. तो वो प्रोग्रामिंग से ऑटोमेटिकली जब हम कोई टॉपिक सुनते हैं, जब कोई इवेंट होता है जैसे आपने बताया, तो उसकी तरफ हमारी टेंशन ज्यादा हो जाती है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और दैट थिंग इज स्टोर्ड इन अवर परमानेंट मेमोरी. वेरी राइटली एक्सप्लेन्ड बाय यू. So I will move to the next part. One is the 3 different ways of saving the memory from short-term memory to the permanent memory. One is by doing something repeatedly, for example, tables. Second is linking method. For example, we discussed about the directions when we guide somebody for directions. Then third is also very important. It can be very useful for in exams, and while appearing in exams and while preparing for the exams. That is, images and videos are very easily stored in our permanent memory as compared to our verbal communication, as compared to text. So images and videos are, we can say, directly transferred to our permanent memory. So I will give you. Yes, beta. Can you explain it again? Okay, the first we discussed about how we can transfer something directly to the permanent memory. So there are 3 different ways. Apart from, along with concentration, along with interest and attention, there are other 3 methods. One is by doing something repeatedly. जैसे हमारे टेबल्स हम याद करते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी maybe there is some music or some tone is also associated with tables, right? Or second method is linking method, linking something unknown with known thing which is already there in your permanent memory. Third is images and videos are very easily transferred to our permanent memory. Okay, Kavya? Yes, understood. So I will take the example of image. For example, आपको कोई चीज याद करनी है और वो नहीं याद हो रही है, उसके लिए आप उसको एक इमेज का रूप दे सकते हो. 2nd October is the birth date of Mahatma Gandhi. Okay, suppose somebody is not able to put it into permanent memory and उसने पहली बार सुना है I'm sorry, और इसको उसने पहली बार सुना है और उसको परमानेंट मेमोरी में मूव करना है. सो लेट अस 2 अक्टूबर, इसमें 2 आ रहा है और ओ आ रहा है, और हमें पता है कि महात्मा गांधी जी के सर पे बाल नहीं थे, तो उनका सर ओ की तरह बनता है. इज इट? उनका सर को हम ओ की तरह ले सकते हैं, और उनके सर को हम बड़ा करके ग्राउंड बना देते हैं. क्रिकेट का ग्राउंड, ओवल ग्राउंड होता है ना, क्रिकेट के ग्राउंड की शेप होती है ओ की तरह. उसमें आपने बहुत बड़ा 2 लिख दिया, बहुत बड़ा 2. इस इमेज को अपने दिमाग में आप रखोगे तो आपके दिमाग में इस इमेज से 2 भी आ जाएगा और ओ भी आ जाएगा, अक्टूबर वाला, और महात्मा गांधी का सर भी आ जाएगा. सो दीज 3 थिंग्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, स्टैक्ड टू ईच अदर. सो दिस वे वी कैन रिमेंबर मेनी थिंग्स. सो दिस इज ओके. अगर मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ऐसा किसी के साथ होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं कभी, और हम बोलते हैं कि मैं आपको जानता हूं, मुझे आपका चेहरा याद है, लेकिन मुझे आपका नाम भूल गया, और उसका नाम हमारे कहीं आसपास टिप ऑफ द टंग पे पड़ा होता है, बार बार वो हमारे जुबान पे आते आते रह जाता है. इट हैपेंस? इट हैपेंस विद एनीबॉडी? Yes. टेल मी योर रिस्पॉन्स. ओके, सो व्हाई इट इज सो? ये क्यों होता है? Yes. इसमें यही लॉजिक है शॉर्ट टर्म मेमोरी और परमानेंट मेमोरी वाला. बिकॉज आपने जो थर्ड मेथड हमने इमेज वाला देखा, जब हम किसी की शक्ल देखते हैं, वो विदाउट एफर्ट्स, विदाउट मच एफर्ट्स, वो हमारी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है फेस. लेकिन जब वो बंदा अपना नाम बताता है, हमें उसमें ज्यादा अटेंशन चाहिए उसका नाम को याद करना. ओके,
तो जब हम उसका नाम बोलते हैं, उसका जो नाम सुनते हैं तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी में नहीं जाता है। तो जब हम उसको बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो हम ये चीज बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी शक्ल याद है, बिकॉज वो इमेज जो है। Vrinda, I want to ask a question. या प्लीज वृंदा, टेल मी। अगर आपको कोई बुरी चीज अब निकालनी हो अपने दिमाग में से, अगर वो हट ही नहीं रही हो, तो क्या करें हम? उस बुरी चीज को हटाने के लिए उस बुरी चीज के बारे में मत सोचो, क्योंकि इसका हम अगले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे, रिकॉलिंग के ऊपर। ठीक है, कोई चीज हम क्यों रिकॉल करते हैं बार बार, उसका अल्टरनेटिव ढूंढो, उसकी बजाय कोई और चीज याद कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई चीज दूसरी, अगर आप उसी चीज को कोशिश करोगे भुलाने की, तो वही चीज आपको बार बार याद आएगी, बुरी चीज। उसकी बजाय कोई अच्छी चीज को याद करो बार बार। जब भी वो चीज याद आने लगे, हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, रिकॉलिंग में। ओके बेटा, तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढना है, उसकी अल्टरनेटिव में कोई और चीज याद करनी। जैसे वो याद आने लगे उसको हटा दो साइड पे, और वो वाली चीज जो आपने सोच रखी है उसके अल्टरनेटिव में, वो याद करनी। तो एक टाइम ऐसा आएगा थोड़े दिन में कि वो आपके वहां से डिलीट हो जाएगी। हाँ सर। ओके वृंदा, ओके सर। ट्राई दिस एंड टेल मी लेटर कि आपने कहाँ प्रैक्टिस किया ये। ठीक है, ओके सर। ओके, या टेल मी सर, या। जब हमको अगर ना कुछ ड्रीम आए तो जब हम स्लीप करते हैं कभी कभार ना उसकी ड्रीम आती है, लेकिन वन टाइम हम उसको भूल भी सकते हैं। Sir, I still remember that my mom told me to be quiet in the class, and it's already been 1 year. Okay. Okay, Inaya, do you want to say anything more, or we should move forward? Let's go further, sir. Okay. So, हमने 3 बात सीखी सेव करने के लिए। पहला, एक चीज को बार बार रिपीट करना है। दूसरा, हमने नोन को अननोन से लिंक करना है। उसमें आपकी खुद की क्रिएटिविटी लगेगी, मैं वो आपको बताऊंगा कैसे। तीसरा है चीजों को इमेज के रूप में याद करना, वीडियो के रूप में याद करना। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, अगर कोई मूवी या सीरियल हम 5 साल 10 साल बाद भी देखे तो हमें पता होता है कि हमने ये देखा हुआ है। क्यों? वही सेम मेथड, बिकॉज वीडियोज एंड इमेजेस आर इजीली ट्रांसफर टू परमानेंट मेमोरी। सो ये कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो हम इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं मेमोरी, अपनी चीजों को याद करने के लिए। सो दिस इज ए गिफ्ट टू अस कि हमारी इमेजेस एंड जो वीडियोस है। इसीलिए जो छोटे बच्चे हैं, किड्स, उनका क्यूरिकुलम चेंज हो गया है। उनको पढ़ाने के लिए अब पिक्चोरियल जो बुक्स हैं उसके अंदर उसको उस तरीके से स्टडी पैटर्न को चेंज किया गया है उनको पढ़ाने के लिए। आप देखोगे अगर उसमें बहुत सारी फोटोज होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, वीडियोस दिखाते हैं स्कूल्स में, वो उसका कारण यही है, बिकॉज उसमें स्टडी में ये पाया गया है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में इमेजेस एंड वीडियोस जल्दी मूव कर जाती हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ओके, सो वी हैव डिस्कस अवर सेकंड टॉपिक। आई हैव समराइज्ड इट ऑलरेडी। First is repeat, along with attention, concentration, and focus. Other 3 things we can do is repeat the things. Number 2 is link the things. Number 3 is images and videos. Then we'll discuss about the retrieving or recalling the information. आप मुझे एक चीज बताइए कि इसमें फर्क है ना? आप मानते हो ना कि स्टोर करने में और रिकॉल करने में डिफरेंस है? ऐसा तो नहीं कि अगर आपने कोई चीज स्टोर कर दी और वो आप हमेशा उसको रिकॉल कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंप्यूटर में कोई फाइल सेव कर देते हो, क्या आप उसको उतनी जल्दी ढूंढ लेते हो कि वो कहाँ पड़ी है? उसको कई बार टाइम लगता है ना ढूंढने में। आपने अपने घर में कोई चीज सेव कर दी, कहीं स्टोर कर दी, तो कई बार होता है ना कि कोई चीज हम बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं और कोई चीज में हमें टाइम लगता है। तो मेमोरी का फायदा तो हमें तभी है, मेमोरी का फायदा तो हमें तभी है अगर हम उस इंफॉर्मेशन को, जब हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को हम रिकॉल कर लें। तो इसका तरीका क्या है रिकॉल करने का? कैसे रिकॉल कर सकते हैं हम इंफॉर्मेशन को इजीली जो हमने की हुई है? इसका तरीका मैं आपको बताता हूं। जो हमने पहले टॉपिक में ये पढ़ा था कि हमारे अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स एक दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं।
तो वहां एक कनेक्शन बनता है, उस कनेक्शन के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है, जितने बार हम उसका इंफॉर्मेशन को रिविजिट करेंगे, रिविजिट करने के लिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यू कैन रिकॉल कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। वो इंप्रेशन आपके उतने ज्यादा आपके जो सर आपकी आवाज नहीं आ रही वो। ओके, तो हमने बात की रिकॉल करने की। तो हमें रिकॉल करने के लिए उस चीज को बार बार विजिट करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड में वो स्टोर्ड है। इसका तरीका क्या है, आप उस चीज को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अपने माइंड में रिपीटेडली लेके आइए। तो आपको एक तरीके से होता है ना कि आपने किसी के घर जाना है और उसका रास्ता आप जब पहली बार जाते हो तो आपको एड्रेस आपके हाथ में होता है, लेकिन वो घर ढूंढने में आपको टाइम लगता है। लेकिन जब आप उसके घर में 2-4 बार ऑलरेडी हो आए तो आप सबकॉन्शियसली भी उसके घर में पहुंच जाते हो, बिकॉज वो आपके यहाँ स्टोर हो गया है और उसका रास्ता भी स्टोर हो गया है। इसी तरीके से अगर कोई इंफॉर्मेशन रिकॉल करनी है, वो इंफॉर्मेशन रिकॉल करने के लिए आपने वो इंप्रेशन बार बार विजिट किया है, तो आप जल्दी उस चीज को रिकॉल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम में बैठे हैं, आपने कोई चीज याद की थी, लेकिन वो आपको उस टाइम पे रिकॉल नहीं हो रही, तो आपका उस टाइम पे टाइम लग गया रिकॉल करने में ज्यादा, तो आपका तो टाइम लिमिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इतना टाइम मिलता है, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया उसमें। तो इसका तरीका क्या है कि उन इंप्रेशंस को बार बार विजिट करो, जो इंप्रेशंस आपने स्टोर करके रखे हैं, और उनको चीजों को बहुत अच्छे से स्टोर करते हुए उनको अच्छे से स्टोर करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, वेयर वी नीड टू स्टोर द, हमें अपनी इंफॉर्मेशन जो स्टोर करनी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हुए ध्यान रखना है कि कोई कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन जैसे आप एक ही इंफॉर्मेशन को एक ही तरीके से अगर स्टोर कर देते हैं, जब आप रिकॉल करने लगेंगे तो वो दोनों इंफॉर्मेशन आ जाएंगी और आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी है। इसकी मैं एक एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ड में, इस प्रिंसिपल वर्ड को जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, इट इज प्रिंसिपल, बट इसके स्पेल 2 तरीके से स्पेल्स होते हैं, राइट। एक प्रिंसिपल जो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल होता है, मेन, और एक होता है प्रिंसिपल जो रूल होता है, रूल। ओके, तो अगर आप कोई स्कूल को लेटर लिख रहे हो, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, सिक लीव लिख रहे हो, या कोई और आपको लीव चाहिए, तो उस टाइम पे आपको टू द प्रिंसिपल लिखना है। किसी के साथ ही ऐसा होता है कि उस टाइम पे आप इस चीज में अटकते हो कि ये कौन सा प्रिंसिपल है, स्पेलिंग क्या होंगे इसके, PRINCIPAL होगा या PLE होगा? किसी को ये प्रॉब्लम आता है? नो सर। अच्छा, कि आपने कैसे स्टोर करके रखा है उसको, फिर कोई तरीका लगाया है कि ये PAL वाला होगा या PLE वाला होगा? करमन, आप बता सकते हो मुझे? अंकल ये ऐसे ही याद रहता है वैसे ही रिपीटेड अंकल, बार बार साइंस रिपीट में करने के कारण, राइट? साइंस में PLE रिपीट होता रहता है और स्कूल में PAL रिपीट होता रहता है। चलो, कोई हो सकता है जिसको ये नहीं याद, उसके लिए ऐसे एक एग्जांपल हम ये ले रहे हैं, लेकिन मे बी आपको ऐसी प्रॉब्लम कहीं और आती होगी किसी और वर्ड में, जो सिमिलर चीजें होती हैं वहां पे हमें ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जैसे PAL है, इसको आपने एसोसिएट कर देना है एक फर्दर लिंक के साथ। फॉर एग्जाम्पल, PAL है ए मेन, उसको मेन के साथ एसोसिएट कर दिया। मेन मीन्स मेन पर्सन ऑफ द स्कूल। तो जब भी हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो PAL वाला होगा। अंकल, बेटा, एक एग्जाम्पल ये भी हो सकती है जिससे NO और KNOW दोनों नो प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। लेकिन जब हम बोल रहे हैं बेटा KNOW एंड नो, दूसरे का स्पेलिंग क्या बताया आपने? NO। लेकिन उसमें हमें अपने माइंड में ये पता होगा ना हम कौन से नो की बात कर रहे हैं। इसमें नो वाला नो या नो वाला नो, जानने वाला नो या ना कहने वाला नो, तो इसकी जो स्पेलिंग है इसमें काफी डिफरेंस है। लेकिन जब हम प्रिंसिपल वाली बात करें, उसमें एक ही अल्फाबेट का फर्क है। प्रिंसिपल में एक ही अल्फाबेट का फर्क है, तो समटाइम्स इट में, अगर हमने उसको अच्छे से वहां पे स्टोर नहीं किया है तो रिकॉलिंग में प्रॉब्लम आ सकता है।
तो इसके लिए आप ए को एसोसिएट किया अपने मेन के साथ, और जो रूल वाला होता है प्रिंसिपल LE, उसमें रूल LE होता है रूल के अंदर. तो दिस वे यू कैन सेव द इंफॉर्मेशन विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी ड्युअलिटी. तो रिकॉल, तो हम बात कर रहे थे रिकॉल करने के लिए. जब हमें कोई इंफॉर्मेशन को इस तरीके से स्टोर करना है कि वो हमें इजीली रिकॉल हो जाए, तो हमें उस इंफॉर्मेशन को, उन कनेक्शंस को, इंप्रेशंस को बार बार विजिट करना है. हम एक अब एग्जांपल लेंगे रिकॉल की. जब हम बात कर, अगर मान लो किसी का आपको नाम याद नहीं आ रहा और आप सोच रहे हो उसका नाम, बार बार सोच रहे हो, लेकिन वो नाम आपके स्लिप हो रहा है, तो हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, कंप्यूटर में हमें अगर कोई फाइल नहीं याद आ रही तो हम फाइल का नाम टाइप करते हैं. और फॉर एग्जांपल आपने टाइप किया स्कूल SC, जैसे ही आप SC टाइप करोगे, SC से शुरू होने वाले सारी फाइल्स आपके कंप्यूटर में लिस्ट डाउन हो जाती हैं. ऐसा होता है. तो व्हाट इफ अगर हम इस चीज को अपनी मेमोरी के लिए यूज करें, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं, इसमें जो यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, तो हमने मेडिसिटी की बात की, गुड़गांव में जो हॉस्पिटल है मेडिसिटी. तो वहां पे एक डॉक्टर है जिसने उसको स्टेब्लिश किया था. उसका नाम स्किप हो गया मेरे माइंड से कि उसका नाम क्या था. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं. इसको अब यूज करके देखना और मुझे बताना कि कितनी यूजफुल रही है. तो आप उसको रिकॉल करने के लिए ए से शुरू कर सकते हैं. अपने माइंड को बोलो कि क्या उसका नाम ए से है, उस डॉक्टर का नाम. आपका माइंड आपको बता देगा ए से नहीं है या है. आप बी पे मूव करिए, बी पे है नहीं है. तो जैसे ही आप उसका जो नाम है उस पर पहुंचेंगे, जो उसका पूरा नाम है डॉक्टर का, जिस नाम से आपने उसको स्टोर करके रखा है, इमीडिएटली आपको क्लिक हो जाएगा कि यस. जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में वो टी पे था, तो जैसे ही मैं टी पे पहुंचा तो मुझे क्लिक हो गया कि इस डॉक्टर का नाम टी पे था. तो माई माइंड स्टार्टेड सर्चिंग फर्दर ऑन टी and I reached to the name Dr. Trihan. So many times it can help you to search out your memory just like we search in the computer. जैसे हम कंप्यूटर में सर्च करते हैं, it functions exactly like that. So it will be very useful to you. So थर्ड पार्ट हमने किया. थर्ड पार्ट में मैं समराइज करता हूं. थर्ड पार्ट इज अबाउट रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन. रिकॉल करने के लिए हमें जो हमारे दिमाग में हमने इंफॉर्मेशन को सेव किया है उसको बार बार विजिट करना है. उन इंप्रेशंस को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी अगर हम विजिट करें तो दैट इंफॉर्मेशन विल बी वेरी इजीली, इट कैन बी रिकॉल्ड. ओके, देन we will move to the last topic of our discussion, that is how we can use all this understanding into our daily use. So can you suggest me some ways how you will be able to use this information in your daily life? अंकल जैसे हमें कोई सोप लेना है तो हमें सोप का नाम नहीं याद आ रहा, तो हम जैसे रिलायंस में जाएंगे तो वहां पर सारे रखे होते हैं, तो आप अपने माइंड में शुरू कर सकते हो A B. Very good. Alphabetical. Okay, so that is the use of this ABCD trick. Uncle, can I tell one more? Yes, please. मेरा हाफ ईयरली के टेस्ट में मुझे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह के लिए लर्न करना था. तो पापा ने मेरे को तरीका बताया. जैसे ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल का कलर रेड होता है क्योंकि अगर आपके मतलब आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो तो आपका फेस रेड हो जाता है, तो मॉलिक्यूल का कलर रेड. और कार्बन ज़्यादा ब्रीथ इन करने से आपके नर्व्स ब्लैक हो जाती हैं, तो कार्बन के मॉलिक्यूल का कलर ब्लैक. वेरी गुड. तो करमन, आप मुझे बता सकते हैं जो हमने सेव करने के 3 तरीके देखे थे उनमें से ये कौन सा है? लिंकिंग. So you have linked the known information to the unknown information. Okay. So now I will tell you very interesting thing. Listen to this very carefully. जो हमारे नंबर्स होते हैं, अगर आपको कोई चीज याद करनी है, आप उन नंबर, जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इन नंबर्स को आप एक एक चीज के साथ परमानेंटली लिंक कर दो.
और आप कोई भी चीज याद कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपका जो 1 नंबर है, नंबर 1, उसको आप टाई के साथ फिक्स लिंक कर दो. टाई में कितने, टाई लुक्स लाइक 1, तो टाई is 1. So whenever number 1 is, you see number 1, you come across number 1, tie should come to your mind. So you have fixed the image for number 1 to your tie. Why we are doing this? Because we have now understood that it is very easy to move the things to permanent memory by using the images. So when somebody is telling us something, he is telling us something on number 1, that thing can be linked to the tie. We will not forget that thing. We have moved that information to the permanent memory. Okay. Second is your n. Your n has two, like it's two vertical lines. N is from two vertical lines. So when we write n, there are two bars. So n is, you can imagine the image of Noah. There was a person, I will show you some pictures of Noah. He was a person, he was fond of boating. He was very old person, he was fond of boating, and that you can link the image of 2 with that person. The person name is Noah, and he is boating in the sea. He can go up to thousands of kilometers or hundreds of kilometers for boating. Okay, then third thing is M. M has 3 bars. So you can link the number 3 with mother. Okay, so similarly we have images which are there for every number from 1 to 100. So I will take the example of 3 as of now to make you understand on this. Further we can learn ourselves, or we can discuss how to what are the images for different numbers, for rest of the numbers. Okay. Yes. Kavya, can you tell me something which you want to remember, like a list of 3-4 things? I will tell you the way out, how you can link those with the images. Time to get up. Sorry? Time to get up. Time to? Get up in the morning. You are not audible. The time to get up in the morning. Okay, time to get up in the morning. You want to remember the time to? Uncle, she can simply put an alarm. She can? Yeah, you can put an alarm. That's it. But I try to do it myself. Okay, can you tell? Okay, I will tell you some example from my side. Okay, so somebody is going to market, and you want to link that, like on the number 1 you have linked the soap. Sir, Hmm. your parents even wake you, you can put an alarm. My daddy wakes, the God wakes them up. Basically, daddy wakes on her own without alarm even. Because daddy Yeah, knows because- that it's 5 o'clock. Yeah, because she use her subconscious mind. अंकल हरगुन वाली साइड माइक नहीं चल रहा, हरगुन मेरे आईडी से बोल रहा है. Okay. अंकल हमें स्कूल से इतना ज्यादा होमवर्क मिलता है, कंफ्यूजन हो जाती है कब कौन सा करना है. कब कौन सा करना है? हाँ जी. तो उसके लिए आप टाइम टेबल बना लो. सर बनाया था मगर वो स्टिकी टेप से उतर गया और नीचे गिर गया. तो टाइम टेबल को याद कर लो बेटा, मेमोराइज कर लो. अंकल लेकिन टाइम टेबल्स अगर सेट करेंगे तो हम डिपेंड करता है ना कि कौन से डे पे मैम कौन सा काम देगी. हर रोज सेम टाइम काम नहीं मिलता ना हमें, रोज अलग अलग असाइनमेंट्स होते हैं. Okay, that is a challenging task. But you can if you want to memorize something, we can take the example here. We can discuss in some other discussion कि अगर हमें जो स्कूल से काम मिलता है उसको हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है, that can be part of time management. Okay. So as part of assignment, I will
I will tell you people to remember. You can write down. Number 1 is Tai. Number 2 is Noah. Number 3 is Ma. You can note down these 3 things, and as assignment, you will tell me the use of these numbers and images in when you have used these 2 times. This is your assignment. Okay. Sir, which assignment is? सबसे बेटा नंबर 1 पे टाई है, आप लिख लो. नंबर 2 पे नोआ है. नोआ is a old man who is fond of voting. Is a old man. Okay, if you want, if you have a capacity, I can tell you up to 10, but I want you to start from 3 numbers, Okay, sir. because if you will find it interesting, then we can move further. Okay, so start with these 3. Any questions? Otherwise, we will wind up. Uncle. Okay. Excuse me, sir. I want to speak this. Yeah, The please. first one is Tai, the second one is Nova, and the third one is Ma. Second one is Noah. N-O-A-H. Okay, sir. Okay. Okay. Bye, everybody. Thank you. Bye. And thank you for the session. Welcome.